Welcome on to this 24th Sunday after Pentecost, and we are nearly coming closer to start the Advent season. It's a time, a celebration reminding of the birth of Lord Jesus Christ, and our first Sunday of the Advent will be on 29th of November, Sunday the 29th. So just after one Sunday, we will be after 22nd Sunday, we will be celebrating the first Sunday of Advent on 29th. So we are preparing ourselves to celebrate and reminding of the birth of our Lord Jesus Christ. And also to remind us as we celebrate our 24th Sunday, we will be celebrating our 93rd dedication, Thanksgiving festival of our church. And 1927, the first service took place over here. And on 19th of November, we will be celebrating 93rd anniversary. And evening 6 o'clock on Thursday, we will be having a worship service on that evening, a very special service. And it will be a time to give thanks to the Lord for His goodness and mercy for 93 years of worshiping at Free Church Tents and St. Mark. And as you look to the Lord, just for information today, our theme for our worship is God will call us to account for our stewardship of time and talent. And here the scripture reminds us in Psalm 50 verse 1, the Lord, even the most high, mighty God, have spoken and called the world from the rising of the sun to the going down thereof. So let us give thanks to the Lord and sing praises to His name, the Most High. Tell His loving kindness as a good steward early in the morning and in the faithfulness of His night. Let's give thanks to the Lord and let us show that our Lord is a true God, a rock on which we are having our faith implanted in that house and that flourishes. That's the joy of stewardship we have. So let's worship, adore God with this thought in mind. And may God bless us as we worship this morning. Let's look to the Lord in prayer. Remember, O Lord, that you have done for us and not what we deserve. And as you have called us to your service, make us worthy of your calling. To Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
The responsive reading this morning has been taken from the book of Psalms, chapter 92, verses 1, 2, and 12 to 15. Please respond by saying, "Prosper thou the work of our hands." It is good to give thanks to the Lord, to sing praises of thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. They still bring forth fruit in old age. They are ever full of sap and green, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first reading is taken from the book of Genesis, chapter 39, verses 1 to 6. Genesis, chapter 39, verses 1 to 6. I am reading from the Revised Standard Version. Now Joseph was taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites, who had brought him down from there. The Lord was with Joseph, and he became a successful man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord caused all that he did to prosper in his hands. So Joseph found favor in his sight, and attended him, and he made him overseer of his house, and put him in charge of all that he had. From the time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was upon all that he had, in house and field. So he left all that he had in Joseph's charge, and having him he had no concern for anything but the food which he ate. Now Joseph was handsome and good-looking. This is the word of the Lord. Word
gospel reading this morning has been taken from the Gospel according to Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. The parable of the bags of gold. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work, and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed? Well, then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. May God add His blessings to the reading and hearing of His word. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and in the midst of the present challenges due to coronavirus, the fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in Delhi and NCR, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, especially at our borders with Pakistan, Nepal, and China. Lord, in your mercy. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, especially for the migrant laborers and their families, and those who are facing difficulties due to the recent floods. We especially pray for those affected by COVID-19 and those who are caring for them. We pray for the medical professionals, scientists, the establishment, and the volunteers. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, especially for our President, the Prime Minister,
the Chief Justice of India, the Lieutenant Governor, and the Chief Minister of NCT of Delhi, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for P.C. Singh, our moderator, A. Dharmaraj Rasalam, moderator of the Church of South India, for Varis Masih, our bishop, for Timothy, Dennis, and Jayakumar, our presbyters, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in your ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance,
through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. Lord Jesus, I love thee, I know thou art mine. For thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, Lord Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me, and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for bearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, Lord Jesus, 'tis now. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, Lord Jesus, 'tis now. Amen. Good morning, friends. I greet you in the name of Jesus Christ our Lord on this 24th Sunday after Pentecost. The theme of our meditation is God's will to call us to account for our stewardship of time and talents. And we will primarily base our meditation on the gospel text, that is, on the parable of the talents. Let us pray. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. In the parable of the talents, a man, before proceeding on a journey, decides to proportionally divide his property and entrust the property to his servants. It is to be noted that the man has not relocated to some other place, but has only proceeded for a journey. He is likely to return someday. It is also likely that this journey is not a short journey for few days or few months, because then
this man may not have divided his property. Thus it appears that the duration of the journey is significantly longer than usual and perhaps spread over several years. So he decides that the first servant he gave 5 talents, to the second 2 talents, and to the third 1 talent. And according to the parable, the first servant who was entrusted 5 talents traded the 5 and earned 5 more. The second did exactly the same. Out of the 2 talents entrusted to him, he earned 2 more. And the third, from 1 talent that he had, he decided to do nothing. He was entrusted 1 talent, but he decided to hide his master's money in the ground. Today, we meditate on 3 simple yet powerful lessons we can draw for ourselves from this parable. The first lesson that we can draw for ourselves is be contented in what God has entrusted to us. It is clear in the parable that none of the servants had any say of what was being entrusted to them. Whatever was entrusted to them was a decision by the owner of the property. Though the distribution was proportionate, 5, 2, and 1 talent, we can be certain that the man did not hold anything back with him or any part of his property. He distributed all he had to his servants and proceeded to the journey. With whatever each received, it is clear from this action that the first 2 servants focused on the possibilities, but the third servant focused on the limitation. Because the first 2 servants focused on possibilities, they actually accepted what was entrusted to them and they went ahead to earn more. But the third servant focused on limitation. He did not accept what he had, and he ended up doing nothing of what was entrusted to him. Sometimes you and I may feel sympathetic to the third servant, and we would say, "Oh, the poor servant, how much could he have done anyway, with only 1 talent that was entrusted to him?" If such a thought has ever crossed our mind, then it will be important to know the market value of 1 talent. Biblical scholars more or less agree that the market value of each talent was equivalent to 15 to 20 years of wages of our laborer. And if we try to convert it into the minimum wages that our land today permits for the unskilled labor, we are talking about a figure which runs in lakhs. In other words, in comparison with the 2 servants, the third servant got a proportion which was lesser. But still, the market value of that 1 talent was still significant. But the third servant was not contented with what was entrusted to him. He focused on the limitations and not on the possibilities at hand. If we recall the creation account in Genesis, both Adam and Eve were blessed by God and they were trusted all authority. They had complete responsibility towards the created order. They were given immense possibilities, but then they could not remain contented for long. And the Satan succeeded in diverting their focus from the possibilities, the authority and the responsibility, and brought the focus from possibilities to limitations. Friends, when we look in our own personality, our life, and our belongings,
We sometimes are not contented in what God has entrusted to us. We tend to focus on what we don't have. In such a situation, we tend to be sad and upset. We get sad and upset with a limitation instead of focusing on the possibilities of what we have been entrusted. We need to learn from the first two servants. We can see that they were contented in what was entrusted to them, and they remained focused on the possibilities at hand. Not only we should remain contented of what God has entrusted, the second lesson for us from this parable is to appreciate what God has entrusted to us. One of the most common feeling that we experience in our day-to-day life is the lack or absence of appreciation. We feel that within our family we lack appreciation, and even at the workplace, appreciation are scarce. In our experience as a congregation during the church programs, many of us get disheartened when we don't get appreciation. When others do not appreciate, we get adversely affected, and rightly so. But do we realize that sometimes we ourselves fail to appreciate our own worth? I'm not talking about a false self-image, where we tend to inflate ourselves much more than what we are. Such a false self-projection will only be misleading and harmful. At the same time, when we miss realizing our own abilities and strength, then we fail to appreciate what God has given to us. The third servant in the parable was not contented with what he had, and thus he could even not appreciate what he was entrusted. Our story is told about a farmer who kept working in his ancestral farmhouse since his teenage until his midlife. He had never experienced the sense of contentment working in this farmhouse for over 25 years. And he always desired to relocate to some other place of his likeness, something that he used to imagine. So he decided to sell off his ancestral farmland. He contacted an agency to facilitate the process, and the agency advised him that he should put an advertisement in the newspaper. So the agency got down to research work, and they prepared a draft advertisement, and they presented to him before it could be published. And it read something like this: a beautiful farmland with fertile soil and sweet water is available on sale. The area gets plenty of sunlight, thus it is full of vegetation. And the backdrop, we can see the trail of mountain range. It is far from city pollution. Still, it is well connected with the nearest town. It has a well-constructed farmhouse with all possible facilities for a family. When the farmer read this draft advertisement, he exclaimed, "For last 25 years, the kind of farmland that I have been imagining that I should be in, this advertisement is speaking about exactly the same farmland." He regretted that in spite of being in the place of his imagination, he could not recognize or appreciate it for years. The third servant had no appreciation of what was entrusted to him by his master. In fact, when the master asked the third servant to give an account of what he had made out of the 1 talent, the servant was full of complaints against the master. "Master, I knew you are a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you did not winnow. So I was afraid,
and I went and hid my talents in the ground. Here you have what is yours. Friends, sometimes instead of appreciating what God had given to us, we end up complaining to God what we lack. At this point, we are inspired by the first two servants who were quick not only to accept but to be contented. They also went ahead to appreciate what they had. Until you and I are contented of what God has given, we cannot be appreciative of what God has entrusted to us. We can hardly make use of our gifts, talents, and possibilities which God has given us. And we become like third servants who is full of excuses. And instead of realizing our own shortcomings, we put entire blame on God Almighty. Going back to the creation account, we must always remember that we are created in God's own image. In the New Testament, discover that God presented Himself in Jesus Christ to all humanity. In other words, both in our being and in our becoming, we are to reflect God's image and God's work, which can only happen when we are contented and appreciative of what God has entrusted to you and to me. The third lesson we can draw from this parable is to invest what God has entrusted to us. As mentioned earlier, the one talent has a market value of 15 to 20 years of wages of a servant. Because the third servant failed to be contented or appreciative of what he had, he was not motivated. He was not inclined to invest what he had. But unlike him, the first two servants, the sooner they received what was entrusted to them by the master, it is written, they went at once, traded with them, and made 5 more talents and 2 more talents each. The attitude of the third servant was to remain non-committal. I could have, but I won't. According to him, he submits that he was afraid, but it is more likely that he was too lazy to attempt. We had noticed in the beginning of our meditation that the master had gone for a long journey, which was perhaps spread out over several years, because that is why he split his property to his servants. His return early was unlikely. Still, the first two servants did not waste their time. They were proactive in making more what was entrusted to them. But the third servant, even after making the initial mistake of not trading, not investing the talents given to him, does not seem to have any time of remorse. He doesn't seem to revisit his own decision. He is unable to reconsider and to redeem the time that was at his disposal. Sometimes we also complain that you and I are trying to race against the time. How often we say that we have no time, that we are keeping so busy. It is important for us as individuals to realize that even if the quantum of talents entrusted to each one of us may vary, but the time at our disposal is equal to all of us. Each of us, no matter who we are, where we have 24 hours a day at our disposal. And we are accountable how we utilize that time to God. During the coronavirus pandemic, you and I have come to look at time and its value as never before. We are learning and adopting new techniques to manage and invest our time. But still, some of us have been better off to invest our time to explore a few new things, learn new skills. But some have ended wasting our time in
looking for entertainment or on social media. I'm not against entertainment or social media, but there has to be a responsible utilization of the time that is given to us. We need to invest our time rightly. Friends, this parable is a great reminder to what God is going to take an account of the time and talents that we have been given. The only way to face the judgment seat is to be reminded of the three lessons which we meditated today. To be contented in what God has entrusted to us. To appreciate what God has entrusted to us, and to invest what God has entrusted to us. And this cannot stop just as an individual level, but also as a congregation at Free Church St. Mark. As a congregation, are we contented of the possibilities that we have at hand? Do we appreciate and value what God has given to us and the way that we have been placed here? And what is the focus of our investment? Because not only as individuals, but as also as a congregation, as a Free Church family, you and I are going to be accountable to God Almighty. I will conclude today's meditation with what St. Peter's writes in his first epistle, chapter 4 and verse 10 and 11. Peter writes, "As each has received the gift, employ it for one another, as a good stewards of God's varied grace, that in everything God may be glorified through Christ Jesus, in whose name we humbly pray. Amen." Let us all affirm our faith and say together, "We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among us and remain with us always. Amen. Children of the Heavenly Father,
good master in heaven, such a refuge there was given. God his own doth tend and nourish, in his holy course they flourish. From all evil things he spares them, in his mighty arms he bears them. Neither life nor death shall ever from the Lord his children sever. Unto them his grace he showeth, and their sorrows all he knoweth. Though he giveth or he taketh, God his children have forsaken. Is the loving purpose solely to preserve them pure and holy. आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 24वां रविवार है। और आज की सुबह हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, परमेश्वर हमसे हमारे समय, योग्यताओं और वरदानों का लेखा लेगा जो उसने हमें दिए हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो
परिचर्याओं में मुझे से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। परिचर्याओं में मुझे से चलाता वो है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सब मिलकर दया याचना की प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, स्मरण कीजिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं थे। प्रभु, आपने हमें अपनी सेवा हेतु बुलाया है, अब हमें अपनी सेवा के योग्य बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 92 1 से 2 और 12 से 15 आयत। आप कृपया उत्तर दें। मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनान को देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युगानुयुग।
सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो कि लिया गया है पुराने नियम से, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय, पहली 6 आयतें। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 25वें अध्याय और 14 से लेके 30 आयत तक। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसके 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन्य ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।
आइए परिहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी
हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। आवा
सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 24वां रविवार है और हमारे अध्ययन का विषय है परमेश्वर हमारे समय और योग्यता का लेखा लेगा। और हम लोग अपना अध्ययन आज का जो सुसमाचार का पाठ है उस पर केंद्रित करेंगे, जो कि तोड़ों का दृष्टांत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। तोड़ों का दृष्टांत उस मनुष्य के बारे में बताता है जो एक लंबी यात्रा पर निकलने पर था, और इससे पहले कि वो यात्रा में निकलता वो अपनी संपत्ति को कुछ हिस्से करके अपने दासों को सौंप देता है। ये देखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है कि ये जो व्यक्ति है वो किसी और देश में जाके बसने वाला नहीं था, बल्कि वो केवल एक यात्रा पर निकला था। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा थी जो छोटी यात्रा ना थी, जो कुछ दिनों के लिए नहीं थी, कुछ महीनों के लिए नहीं थी। हो सकता है और बहुत संभव है कि वो बहुत सालों के लिए थी, क्योंकि कुछ दिन और महीनों के लिए कोई अपनी संपत्ति नहीं बांटता। लेकिन ये बात भी सही है कि वो एक दिन लौटने वाला था। उसने अपने पहले दास को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और लिखा है कि जो पहला दास था उसने वो 5 तोड़े लेके 5 और कमाए, दूसरे ने 2 तोड़े लेके 2 और कमाए, लेकिन जो तीसरा दास था जो उसको 1 तोड़ा मिला था उसने जाकर उसको भूमि में गाड़ दिया। आज इस दृष्टांत से हम अपने लिए 3 साधारण लेकिन बड़ा सशक्तिकरण करने वाले बातें अपने लिए हम मनन कर सकते हैं। पहली बात है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है हमें उसमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए।
ये इस दृष्टांत से एकदम साफ है कि इसमें जो दास थे उनका कोई भी रोल नहीं था, उनका कोई भी अधिकार नहीं था कि उनको कितना मिले। यह अधिकार केवल उस संपत्ति के स्वामी के पास था, उनके मालिक के पास था, जो ये निर्णय लेता है कि वो कितनों को बांट दे। और इसीलिए पहले को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 तोड़ा मिला। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस व्यक्ति ने कुछ भी अपनी संपत्ति का अपने पास रखना छोड़ा, सब कुछ बांट दिया। और ये भी बात दिखाई देती है कि जो कुछ जिसके पास मिला, उसमें से जो पहले 2 दास थे, उन्होंने ये इस बात पर ध्यान दिया कि जो कुछ उनको मिला है उससे क्या क्या संभव है। लेकिन जो तीसरा दास था, उसने इस बात पर ध्यान दिया कि जो कुछ मिला है उसमें तो कुछ भी करना असंभव है। पहले 2 दास जो संभावनाएं हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट थे जो कुछ उनको दिया गया था। लेकिन जो तीसरा दास है वो केवल जो चीज़ें असंभव है उस पर केंद्रित है, क्योंकि उसका जो ध्यान था वो इस बात पर था कि वो संतुष्ट नहीं था जो कुछ उसको दिया गया था। कई बार मैं और आप भी इस तीसरे दास के प्रति दया का व्यवहार रख सकते हैं। हम शायद ये सोच सकते हैं कि वो तीसरा दास और क्या कर सकता था। जहां एक को 5 और एक को 2 मिले, उसको तो केवल 1 ही मिला। लेकिन एक बात हमारा ध्यान देने की है कि भले ही एक को 5 और एक को 2 और तीसरे को केवल 1 तोड़ा मिला, उस तोड़े की मार्केट वैल्यू क्या थी, उसकी सचमुच कीमत क्या थी। जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो 1 टैलेंट था उसकी कीमत करीब करीब इतनी थी जितनी कोई अगर मजदूर 15 से 20 सालों तक अपनी मेहनत मशक्क़त करे और जितनी आमदनी वो कमा सकता है उतनी कीमत 1 तोड़े की थी। यानी अगर मैं और आप बात करें, जो हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में, कि अगर कोई मजदूर है, अगर वो कमाता है तो कम से कम इतना तो हम उसको महीना का हमें देना ही चाहिए, तो ये कीमत जो है वो लाखों में जा सकती है। अन्य शब्दों में अगर हम बाकी 2 दासों के संग तुलना करें तो भले ही बाकी 2 दासों की तुलना में इसके पास 1 ही तोड़ा था, लेकिन अपने आप में ये तोड़ा कम नहीं था, क्योंकि उसके पास 15 से 20 साल तक का जो मेहनताना है उसको दिया गया था। लेकिन फिर भी ये दास उससे असंतुष्ट रहता है, और इसलिए बजाय इस बात पर ध्यान देने में कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, वो ये मान लेता है कि इसमें कुछ भी संभव नहीं है। जब हम स्मरण करते हैं सृष्टि का वो वर्णन जो हमें उत्पत्ति की किताब में मिलता है, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को संपूर्ण अधिकार दिया, उनको सारी जिम्मेदारी दी उस सृष्टि के ऊपर जो परमेश्वर ने रची। उनके पास बहुत सी संभावनाएं थीं, लेकिन जब शैतान का प्रवेश होता है, वो उनका ध्यान उन संभावनाओं के बनिस्बत उस बात पे लगाता है कि उनके सामने क्या एक बात असंभव रखी गई है। और जब आदम और हवा का ध्यान उन संभावनाओं से दूर उस बात पर जाता है जहाँ जाना उनके लिए असंभव था, वो असंतुष्ट हो जाते हैं और वो प्रभु की उस बात को जो उन पर सौंपी गई थी उसमें वो कमी महसूस करते हैं। प्रिय मित्रों, मुझे और आपको अपने आप के अंदर झांक के देखना है, अपने जीवन को परख कर देखना है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसको देखना है। कई बार मैं और आप भी जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। हम कई बार उदास हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उस बातों में जाता है कि ये तो संभव नहीं है, और हम जो बाकी संभावनाएं हैं उससे अपनी नज़र हटा लेते हैं। हमें तीसरे दास से नहीं, उसके समान नहीं बनना है। हमें वो दोनों जो पहले दास है उनसे सीखना है, क्योंकि उनको जो कुछ दिया गया था वो उसमें संतुष्ट थे
और इसलिए उनका ध्यान था कि वो क्या क्या संभावनाएं हैं जो वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, ना सिर्फ हम उसमें संतुष्ट हों, लेकिन हम उसकी कदर करें। वी मस्ट एप्रिशिएट वॉट गॉड हैज़ इंटरेस्टेड। कई बार मैं और आप महसूस करते हैं कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी ज़्यादा कदर नहीं होती, कोई हमें सराहता नहीं है, परिवार में लोग हमारी कदर नहीं करते, या जहाँ मैं काम करता हूँ करती हूँ वहाँ लोग मेरी कदर नहीं करते, मुझे मेरे काम के लिए नहीं सराहते। कई बार कलीसियाई जीवन में जब मैं और आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं और हमें कोई सराहता नहीं, कोई कदर नहीं करता, तो मेरा और आपका दिल टूट जाता है। जब और लोग हमारी कदर नहीं करते, हमें सराहते नहीं, तो उसका प्रभाव एक नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है, एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन क्या मैं और आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं, कई बार हम अपने आप की भी कदर नहीं करते हैं। हम अपने आप का जो मूल्य है, हम क्या हैं, हम कई बार ये भी नहीं समझ पाते हैं। मेरा मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपने आप के बारे में कोई फॉल्स सेल्फ इमेज रखें, हम अपने बारे में कुछ ऐसा सोचे जो नहीं है और अपने आप को जो हम हैं नहीं उससे बढ़ चढ़कर सोचने वाले हो सकें। अगर हम अपने को अपने से बढ़ चढ़कर सोचेंगे तो वो गलत होगा और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमें जो हमारी काबिलियत है, हमारा जो एक बहुत ही अच्छा पहलू है, हमें उस बात के लिए अपने आप की कदर करना भी सीखना चाहिए। लेकिन तभी हो पाएगा कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम उसमें संतुष्ट हों। अगर संतुष्ट होंगे तो हम कदर भी कर पाएंगे। एक कहानी बताई जाती है उस किसान के बारे में जो अपने पुश्तैनी ज़मीन पर करीब 16 वर्ष की आयु से कार्य करता था और करीब 50 साल की आयु तक, वो 40-50 साल की आयु तक वो काम करने में लगा हुआ था। और इतने पूरे सालों में जो 25-30 साल उसने अपनी मेहनत करी थी अपने उस पुश्तैनी ज़मीन में, उसको हमेशा इस बात की चोट रहती थी कि काश मैं किसी और जगह होता, उस जगह होता जो मेरे सपनों की जगह है। और वो एक दिन फैसला करता है कि जो उसका ये पुश्तैनी ज़मीन है वो उसको बेच देगा और ऐसी जगह ज़मीन खरीदेगा जिसकी कल्पना वो किया करता है। और वो एक एजेंसी को बुलाता है, उनसे कहता है कि मुझे ये ज़मीन बेचनी है। और वो बताते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा कि आप अगर अखबार में इश्तिहार दें। तो इश्तिहार की तैयारी करी जाती है, उससे पूछा जाता है और इश्तिहार जो बन के तैयार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एक बहुत उपजाऊ भूमि है और इस भूमि में बड़ी अच्छा मीठा पानी जाता है और क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी भरपूर होती है, यहाँ पर अच्छी उपज ये भूमि देती है। ठीक इस भूमि के पीछे पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देती हैं जो इस दृश्य को बहुत ही मनोहर कर देती हैं। जो एक शहर के पर्यावरण की समस्याएं होती हैं, प्रदूषण होता है, उससे तो ये जगह बहुत दूर है, स्वच्छ हवा है। लेकिन अगर शहर जाना हो तो ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इस भूमि में वहाँ पर एक मकान भी बना हुआ है जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं एक परिवार के लिए। जब ये किसान इस इश्तिहार को पढ़ता है तो वो कहता है, अरे यही तो वो जगह थी जिसके बारे में सोचा करता था कि मेरे पास ऐसी ज़मीन होनी चाहिए और इतने सालों में मुझे पता ही नहीं था कि ये ज़मीन तो मेरे पास पहले से ही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि जो कुछ हमें दिया गया है जब हम उसमें संतुष्ट नहीं होते तो हम उसकी कदर भी नहीं कर पाते। जो तीसरा दास है वो इस बात के बिल्कुल भी कदर नहीं करता जो कुछ उसके मालिक ने उसको दिया था। और जब स्वामी लौटता है और उससे पूछता है कि उस तोड़े के साथ उसने क्या किया, उसका क्या उत्तर है। मत्ती 25-24 में ये दास अपने स्वामी से कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। और वो
तमाम बातों में अपनी एक एक्सक्यूज़, अपनी एक बात तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करता है। और कई बार मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। बजाय इसके कि हम परमेश्वर को सराहें, उसको धन्यवाद दें, हम परमेश्वर तक अपने दिल की जो चोट है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमें उन दो पहले दासों से सीखना है जो बहुत ही जल्दी इस बात को अपना लेते हैं कि जो कुछ उनको दिया गया तो संतुष्ट हो जाते हैं, और वो उसकी सराहना भी करते हैं, उसकी कदर करते हैं। जब तक मैं और आप जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उस पर संतुष्ट नहीं होंगे, हम उसकी कदर नहीं कर पाएंगे, और हम उस तीसरे दास के समान हो जाएंगे जो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, और बजाय इस बात को समझने के लिए कि उसकी कमी थी, वो सारा का सारा दोष जो है वो अपने स्वामी पे लगा देता है। अगर हम सृष्टि का जो बारे में लिखा है हम देखते हैं उत्पत्ति किताब में, हमें स्मरण आता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा। मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, और नया नियम बताता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा अपने आप को संपूर्ण मानव जाति को प्रस्तुत कर दिया। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो हम जो कुछ हैं और जो कुछ परमेश्वर हमें बना रहा है, परमेश्वर की उस स्वरूप को, उस कार्य को मैं और आप दर्शाते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं और आप संतुष्ट हों कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, संतुष्ट हों कि प्रभु यीशु हमारे लिए आया, और तभी हम इस बात की कदर कर पाएंगे कि प्रभु परमेश्वर का स्वरूप हमारे जीवन में और प्रभु यीशु का वो कार्य जो उसने क्रूस पर किया हमारे जीवन में प्रकट हो सके। तीसरी बात, जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा है ना सिर्फ हम उसमें संतुष्ट हों, उसकी कदर करें, बल्कि हमें उसका उपयोग भी करना है। जैसा कि हमने मनन में देखा था कि जो ये एक तोड़ा था उसकी कीमत करीब 15 से 20 साल की मेहनताना था जो एक मजदूर करता है। और ये जो तीसरा दास है वो ना तो उसमें संतुष्ट होता है ना उसकी कदर करता है, और इसलिए वो इस तोड़े का इस्तेमाल करने के लिए ना तो कोई सामने आता है ना प्रयास करता है। इसके विपरीत जो बाकी दोनों दास हैं, जैसे ही उनको जो तोड़ा मिलता है उसको वो संतुष्ट होते हैं, उसकी कदर करते हैं, और तुरंत जाकर 16 पद में लिखा है कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, दोनों ने तुरंत जाकर उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जो तीसरा दास है उसका ये व्यवहार था कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और वो बहाना बनाता है अपनी कमज़ोरी को, अपने आप दी हुई लाचारी को वो प्रस्तुत करता है कि वो उसका डर था जो स्वामी के प्रति था। कई बार मैं और आप भी ऐसा ही बहाना बनाते हैं। लेकिन एक और बात है जो यहाँ ध्यान देने की है, जो ये जगह का मालिक था जब संपत्ति को बांट कर चला जाता है तो एक दिन वो वापस आने वाला है। यात्रा उसकी लंबी है, सालों तक है, लेकिन वो लौट के आने वाला है। जितना भी वो समय है, वो दोनों दास जो हैं समय का सदुपयोग करते हैं। वो 5 और 2 तोड़े से और अधिक कमाने के द्वारा 5 और 2 तोड़े कमाने में वो देरी नहीं करते। लेकिन ये तीसरा दास तो गलती करता है, 1 तोड़ा मिलकर उसको भूमि में छिपा लेता है। लेकिन गलत ये भी है कि हो सकता है उस समय फैसला गलत हो गया हो, जल्दबाजी में हो गया हो, लेकिन कुछ समय बाद अपने फैसले के बारे में सोच सकता था। एक दिन नहीं तो 1 हफ्ते या 1 महीने, 1 साल के बाद उस तोड़े का निकाल कर फिर भी इस्तेमाल कर सकता था। उसके पास समय था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब समय की बात आती है तो मैं और आप भी अपने जीवन में समय की कमी हम लोग अनुभव करते हैं। कई बार हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, हम बहुत बिजी हैं, पता नहीं समय कहाँ निकल जाता है। ये बात मुझे और आपको समझनी है। भले ही परमेश्वर ने हमें अलग अलग योग्यताएं दी हैं, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 तोड़ा दिया है, लेकिन समय तो हम सभी को बराबर ही दिया गया है।
हम सभी के पास, चाहे हम कोई भी हो, हमारा ओहदा कोई भी हो, जिम्मेदारी कोई भी हो, हम सभी को जीवन में हर एक दिन 24 घंटे मिलते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि मैं और आप जानें कि हम इस समय को परमेश्वर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस कोरोना वायरस पैंडेमिक में, महामारी में, हम लोगों ने समय को एक नए रूप में देखा है और बड़े ध्यान से देखा। उसकी कीमत को मैंने और आपने समझा है। और हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने नई बातें सीखी हैं। वो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और समय का नया सदुपयोग करने का तरीका उन्होंने सीखा है। लेकिन हम में से कई लोगों ने केवल समय काटना सीखा है। समय तो सभी का कट जाएगा, लेकिन उसका सदुपयोग मेरे और आपके हाथ में है। ये जो तोड़ों का दृष्टांत है, ये हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत कुछ सौंपा है। अपने स्वरूप को सौंपा है, अपने पुत्र के कार्य को सौंपा है। उसने हमें कई योग्यताएं दी हैं, लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम ये तुलना ना करें कि उसको 5 मिला, इसको 2 मिले, मुझे 1 मिला। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट हों, उसकी कदर करें और हम उसका उपयोग करें, क्योंकि प्रभु उसका लेखा लेगा। और बात केवल यही नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष की बात है या मेरी बात है, बात हमारी कलीसिया के रूप में भी है। हम जो फ्री चर्च संसद माँ का परिवार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? प्रभु ने कलीसिया के रूप में हमको जो कुछ सौंपा है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? क्या जो कुछ हमारे पास संभावनाएं हैं, क्या हम उसकी कदर करते हैं? और प्रभु ने जो कुछ हमें सौंपा है, क्या हम उसका उपयोग भी करते हैं? और ये बड़ा सवाल है जो हमारे सामने बना रहना चाहिए। संत पतरस के ये शब्द जो पौलुस पतरस की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय और 10 और 11 पद में मिलती है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, पहला पतरस 4, 10 और 11 में, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए, जिससे सब बातों में प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु हमें वर दे कि जो कुछ उसने हमें सौंपा है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, और जो कुछ हमारे पास है उसमें हम उसमें सचमुच संतुष्ट होना सीख सकें, हम उसकी कदर करें और हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ताकि उससे लोगों की भलाई हो और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे 3रे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला,
हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।